امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے بھی موقف لیں گے۔ سراج الحق صاحب، جس طرح پریکٹیکلی دیکھا جا رہا ہے، امیج جو انٹرنیشنلی جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی جنگی جنون کسی طرح کا بھی نہیں ہے، جو جنگی جنون ہے وہ صرف اور صرف بھارت میں ہے، بھارت ہی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، بھارت کو ایک باور کرایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی فوج کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے آج کی کارروائی سے اپنی قوم کا مورال بلند کیا، اور خود آج کی کارروائی سے انڈیا کو ایک پیغام ملا ہے کہ انڈیا کے لیے بھی امن کا راستہ بہتر راستہ ہے۔ باقی آج جو ملبہ گرا ہے پاکستان کے حصے میں، جو لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کے پائلٹ گرفتار ہو گئے ہیں، اس سے پاکستان کی پوزیشن کافی بہتر ہو گئی ہے، اور عالمی برادری کو اپنی بات اور اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں ایک مؤثر دلیل اور برہان ہاتھ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو فرض بنتا ہے OIC کا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو، اس لیے کہ OIC کا مطلب یہی ہے کہ مسلم ممالک وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ یہی وہ ہے کہ پاکستان تمام سفیروں کو بلا لے، ان کو بریفنگ دے دے، ان کو وہ ملبہ وہ لوگ دکھائیں کہ کس طرح پاکستان نے اپنی دھرتی اپنے زمین کی حفاظت کی ہے۔ لیکن آگے بڑھ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ ماحول ہے اس وقت انڈیا میں، ایک ناکامی اور شکست سے دو چار ہے وہاں کی قیادت، اور ایک سانپ زخمی ہو جائے تو پھر وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لہذا ہمیں اپنے حفاظت کے لیے اور بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج حکومت نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی بلایا ہے، کل مشترکہ اجلاس بھی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی تجاویز ان کے ساتھ شیئر کریں۔ بہرحال اس وقت بین الاقوامی برادری کو بھی ایک فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور دنیا کے ضمیر پر دستک دینے کی ضرورت ہے کہ دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری ریجن میں امن و امان اور ایک ایٹمی وار سے دنیا کو بچانے کی ضرورت ہے، لہذا بین الاقوامی دنیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس پورے ماحول کا جو اصل مشکل ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام ہے، کہ جب بھی ہندوستان کو شکست کا سامنا ہوا ہے تو اس نے پوری طرح ڈٹائی کے ساتھ وہاں کے عوام پر مزید ظلم کرنا شروع کیا ہے۔ تو مناسب موقع ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر کی آواز کو بھی دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں، اہتمام کریں، اور ساری دنیا کو یہ بتائیں کہ مظلوم لوگ، مجبور لوگ، جن پر 8 لاکھ سے زیادہ فوج انہوں نے مسلط رکھا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ ان کو مرضی کے ساتھ رہنے دیا جائے اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ان کے ساتھ بیہیو کیا جائے۔ باقی مودی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ تنگ نظری ہے، تعصب ہے، جنگ ہے، نفرت ہے، ان کے رگ میں، ان کے خون میں نفرت اور تعصب ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو شکست ہو جائے، اور شکست سیاسی لحاظ سے بین الاقوامی برادری میں ان کو شکست ہونا چاہیے، تبھی ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سراج الحق، ٹھیک ہے سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خواجہ آصف صاحب، ہیرا نبانی کھر صاحبہ اور دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لودھی صاحب بہت شکریہ آپ سب کے وقت کا۔ آج ہونے والی کارروائی، کل ہونے والی ڈیولپمنٹ، اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ DGISPR نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی، اور آج جو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی ہے، دفاعی کارروائی کی گئی ہے، اس سے متعلق بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 6 ٹارگٹس انگیج کیے گئے تھے، نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن یہ جو کارروائی ہے انہوں نے بتایا اس کا مقصد یہ تھا، باور کروانا تھا، بتانا تھا کہ پاکستان صلاحیت قوت ہونے کے باوجود خطے میں امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا ہے، پاکستان امن کی بات کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکلے۔ DGISPR نے بار بار یہ بات کہی کہ عالمی برادری پاک بھارت کشیدہ حالات کا نوٹس لے، اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے کے امن کو داؤ پر لگا کر کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا۔ DGISPR جنہوں نے کہا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہم خطے کے وسیع تر مفاد میں کرنا نہیں چاہتے، ہم امن پسند ملک ہیں۔ کارروائی سے متعلق انہوں نے بتایا کہ 2 بھارتی پائلٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، حراست پہ لیا گیا ہے گراؤنڈ فورسز کی جانب سے، ایک زخمی تھا جس کو CMH اسپتال منتقل کیا گیا طبی امداد کے لیے۔ دوسرے کا بیان بھی ہم نے آپ کو بتایا جو کہ ونگ کمانڈر ابھینندن ہے، اور اس کی ویڈیو بھی اب سے کچھ دیر پہلے ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے۔ DGISPR میں
मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग दी अब से कुछ देर पहले और बताया कि आज सुबह पाकिस्तान एयरफोर्स ने मकबूजा कश्मीर में 6 अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और अमन चाहता है। साथ ही साथ ताज़ा अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती और जोहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास शुरू हो गया। आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी आसिफ। अलीना, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम तरीन इजलास इस वक्त जारी है। ये इजलास एक ऐसी सिचुएशन में बुलाया गया है जब पाकिस्तान के ऊपर एक वार मुसल्लत की भारत की तरफ से भारतीय फिजाई दरअंदाजी के जरिए और उसका पाकिस्तान ने आज रिस्पॉन्ड भी किया है। और सारी सूरत हाल के बाद इससे पहले ही कल जब मीटिंग हुई थी कौमी सलामती कमेटी की, उसके दौरान ही ये फैसला किया गया था कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम तरीन इजलास बुलाया जाए। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर सीनियर हुकाम शरीक हैं। इसी में जो मेंबर वज़रा हैं इस NCA के, जिसमें DG ISI हैं, DG SPD हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक डिवीजन प्लान्स डिवीजन है, जो कि बहुत ही अहम तरीन महकमा है, जो कि HPS सजाद की निगरानी पर मामूर है। इसके अलावा मुल्क के अंदर जो बाकी जो सीनियर वज़ारत ख़ारजा के हुकाम हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास के अंदर एक तो पाकिस्तान की जो मजमूई सलामती की सूरत हाल है और जो जोहरी कैपेसिटी है और उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात हैं उस पर ब्रीफ किया जा रहा है, जबकि साथ ही में जो भारतीय दरअंदाजी हुई है, फिजाई दरअंदाजी, और उसके बाद जो पाकिस्तान का मुतवक्किल रद्द-ए-अमल था, जैसे कल डिसीजन हुआ था कौमी सलामती कमेटी में, आज उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है उस सारी सिचुएशन के ऊपर तफसीली ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही में जो पाकिस्तान के पास दीगर ऑप्शंस हैं उन पर भी तफसीली गौर होगा। ये भी बताता चलूं कि ये नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो फोरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट फोरम है, जहां पर पाकिस्तान के जो न्यूक्स हैं और पाकिस्तान की जो जोहरी सलाहियत है उस तमाम मामले को इस फोरम के जरिए डिस्कस किया जाता है। इसमें उसकी प्रोग्रेस का अंदाजा लगाया जाता है और साथ ही में जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से, खासतौर पर जोहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो इक़दामात हैं उन पर भी तफसीली तौर पर डिबेट की जाती है। वज़ीर आज़म इसके चेयरमैन हैं, जबकि बाकी सर्विसेज चीफ्स और वज़रा जो हैं, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, वो इसके मेंबर हैं। तो इस वक्त ये इजलास, अहम तरीन इजलास जो है वो जारी है और इस इजलास में ये तमाम सूरत हाल ज़ेर गौर है। जी, इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम भी शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये अहम इजलास शुरू हो गया है। कमांड अथॉरिटी के मेंबर वज़रा और दीगर इसमें शिरकत करें। इजलास में मुल्की सलामती और जोहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। भारत की जानिब से फ़ज़ाई दरअंदाजी के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर इस इजलास में गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। आसिफ अली भट्टी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान का आलमी बरादरी पर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, DG ISPR ने वाज़ेह पैगाम दिया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। ताज़ा और अहम अपडेट यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे, अपने मौक़िफ़ से आगाह करेंगे, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी से मुतालिक और हिकमत अमली से मुतालिक आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद तमाम तर मुल्की सूरत हाल पर कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे। ये ताज़ा तरीन अपडेट जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ ही देर बाद कौम से खिताब करेंगे और कौम को एतमाद मिलेंगे। तमाम तर सूरत हाल जो कि डेवलप हो रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान उस पर कुछ देर बाद कौम को एतमाद मिलेंगे, कौम से खिताब करेंगे। राना जवाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। राना जवाद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे और इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास भी शुरू हो गया है, अहम फैसले भी मुतवक्किल हैं। देखें, बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो खतरनाक हद तक कशीदा है। और कल भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ था उसमें पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जो है वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आज नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो कौम से खिताब करेंगे और कौम को एतमाद में लेंगे मौजूदा सूरत हाल के बारे में। और जो भी सूरत हाल डेवलप इस वक्त हो रही है खित्ते के अंदर, उसमें पाकिस्तान का पैगाम तो बहुत वाज़िया है
और पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कहा है कि डी एस्केलेट करना चाहिए, एस्केलेशन का कोई फायदा नहीं है, एस्केलेशन अगर होगी तो पूरे खित्ते का भी अमन तबाह होगा और दुनिया में भी इसके रिपल्स और रिपरकशंस आएंगे। तो ये इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर का जो खिताब है कौम से, वो ये सारी चीज़ें आउटलाइन करेगा। पाकिस्तान एक वाज़िया मैसेज देगा, पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी नच करेगा कि वो सूरत हाल में हिंदुस्तान को ये पावर कराए कि किसी किस्म की जारहियत जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मैचिंग रिस्पांस भी आएगा और पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। लेकिन पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तमाम मामलात का हल जो है अमन के लिए चाहता है। तो इमरान खान साहब का ये खिताब जो है ये क्रिटिकल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्शन देगा पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी मैसेज होगा कि अगर किसी भी सूरत हाल में कोशिश पाकिस्तान की ये है कि अमन को प्रायोरिटी दी जाए, हिंदुस्तान को भी कहा जा रहा है कि वो डी एस्केलेट करे और इस सूरत हाल को ख़राब ना करे, लेकिन अगर कोई भी एग्रेशन हिंदुस्तान की तरफ से होती है तो पाकिस्तान जो है उसका मैचिंग रिस्पांस देगा। और पाकिस्तान एक जमहूरियत है, पाकिस्तान के जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और वो इस चीज़ को, अपनी नेशन को इस चीज़ पे एतमाद में लेंगे कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो क्या है, पाकिस्तान का उस पर मौक़िफ़ क्या है। आज जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है वो दिफाई कार्रवाई थी। हिंदुस्तान को चाहिए कि अगर उसके कुछ कंसर्न हैं, उसके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसकी जो शिकायत है उसको टेबल पे लेके आए और गुफ्त शनीद के ज़रिए हल करे। ताहम अगर हिंदुस्तान ने किसी और तरफ जाने की कोशिश की, किसी किस्म की और जारियत की कोशिश की, तो फिर इमरान खान कौम से यही खिताब कर रहे हैं कि फिर हर किस्म की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होना चाहिए और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो बिल्कुल अलर्ट है और रेडी पोजीशन में है कि वो मुल्क का दिफा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जवाद साहब, आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस वक्त नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास जारी है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम शरीक हैं। इजलास में मुल्क की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। ये इजलास इस वक्त जारी है, अहम इजलास है जिसकी सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान कर रहे हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये अहम इजलास इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे तमाम तर मुल्की सूरत हाल पर। इस इजलास की अगर बात करें तो इस इजलास में मुल्क की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास इस वक्त जारी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी से। आसिफ, इस वक्त इजलास जारी है। जी अलीना, बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम तरीन इजलास जारी है। इस इजलास में जो मुल्क की मजमूई सलामती की सूरत है, खासतौर पर ये जो फोरम है, ये न्यूक्लियर जो आपकी कैपेबिलिटी है और साथ ही में जो पाकिस्तान के न्यूक्स हैं उनके हवाले से जो उनकी डेवलपमेंट है और उनकी जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से ये फोरम है और इसी हवाले से तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जा रहा है। आज शुरा को इस इजलास में आर्मी चीफ शरीक हैं, उनके साथ दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, साथ ही में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, DGISI, DGSPD और साथ ही में वफाकी वज़रा जो कि इस अथॉरिटी के मेंबर हैं वो भी इस इजलास में शरीक हैं। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस इजलास में मजबूरी तौर पर जो भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई, फिजाई दरअंदाजी, उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पांस है, जिस तरीके से चीज़ें डेवलपमेंट हुई हैं और भारत को जिस तरह रिस्पॉन्ड किया गया है पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की तरफ से, ये तमाम सूरत हाल आज के इस इजलास में ज़ेर बहस है और इस पर तफसीली तौर पर ब्रीफ भी किया जाएगा। साथ ही में जो पाकिस्तान मुमकिन तौर पे अगले स्टेप्स जो उठाने हैं पाकिस्तान ने, उन मामलात पर भी तफसीली तौर पर गौर होगा। तो ये एक बड़ा फोरम है जिस पर पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाता है और साथ में पाकिस्तान की जो प्रिपेयरनेस है रिगार्डिंग न्यूक्स और एटमी असाजात, उस हवाले से भी बातचीत होती है। तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयर होते हैं और इस वक्त उन्हीं की सरबराही में ये इजलास जारी है और कुछ ही देर बाद ये भी इतलात हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करने जा रहे हैं इस सारी सूरत हाल पर। जब वज़ीर आज़म ने खुद हुक्म दिया था कि वो अपनी मुसल्लह अफवाज को इस बात का हिदायत करते हैं कि वो किसी भी किस्म की जो जारहियत है भारत की तरफ से उसको रिस्पांस दें फौरी तौर पे, और वही हुआ है। ये सारी सूरत हाल चूंकि वज़ीर आज़म खुद इसकी बराह रास्त निगरानी भी कर रहे हैं, इस इजलास के बाद जो है वो मुतवक्किल है कि कौम से खिताब करेंगे और उसमें सारी तफसीलात का भी इजहार करेंगे कि पाकिस्तान ने जिस तरह से कम दिफाई सलाहियत को मेनटेन किया हुआ है, साथ ही में पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और इंडिया को बारहा वार्निंग के बावजूद पाकिस्तान ने यह भी
भी वाज़ेह किया था कि अगर कोई भी किस्म की जारहियत मुसल्लत की जाती है पाकिस्तान के ऊपर तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल कौम के सामने रखेंगे वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब में। जी आसिफ अली भट्टी हमें सूरत-ए-हाल से आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं इजलास के बारे में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये अहम इजलास जारी है और जिस तरह के आसिफ अली भट्टी बता रहे हैं कि इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुकाम शरीक हैं। इजलास में जो सूरत हाल पर बात हो रही है, मुल्की सलामती की बात हो रही है, जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं और ये भी बताया आसिफ अली भट्टी ने कि अब से कुछ देर बाद इस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे तमाम तर मुल्की सूरत हाल पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सलामती काउंसिल के इजलास में ये इजलास तलब किया था। NCA का इजलास नहायत ही अहम इजलास जिसमें जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक बातचीत होगी, उमूर ज़ेर गौर आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस इजलास को चेयर कर रहे हैं। इजलास का आगाज़ हो चुका है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर हुक्काम शरीक हैं। मुल्क की सलामती की बात हो रही है, साथ ही साथ ये फोरम खुसूसी तौर पर जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक है, उस पर गौर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब भी करेंगे, स्टेट पॉलिसी बयान करेंगे, कौम को एतमाद मिलेंगे। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत NCA नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास शुरू हो चुका है और इस इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे, जिससे मुतालिक आपको हम लम्हा बलम्हा अपडेट करें। इस इजलास से मुतालिक भी अपडेट करें जिस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर हुक्काम शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। कमांड अथॉरिटी के मेंबर वज़रा, DG ISI, DG SPD भी शरीक हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इजलास में मुल्की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक तमाम तर जो उमूर हैं वो ज़ेर गौर हैं। भारत की जानिब से फ़ज़ाई दरअंदाजी के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब भी करेंगे और मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे, कौम से खिताब किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अब से कुछ देर बाद। लेकिन इस वक्त इजलास जारी है, बहुत ही अहम इजलास में फैसले मुतवक्के हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी का ये अहम इजलास है जो कि इस वक्त जारी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी है और इजलास में मुल्क की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। गुज़श्ता रोज़ भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी हुदूद में दरअंदाजी की। पाकिस्तानी तैयारों ने उनको चेज आउट किया। जाते जाते भारतीय तैयारे पेड लोड गिरा गए। भारतीय दावों के बरअक्स DG ISPR ने गुज़श्ता रोज़ ये वाज़ेह किया, क्लियर किया कि कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ पेलोड के नतीजे में। और वीडियो भी दिखाई एक बड़ी इंटेंसिव, हम लोगों ने भी आपको वीडियो दिखाई स्क्रीन पर, जिसमें कुछ दरख्तों को नुकसान पहुंचा, जो धमक हुई पेलोड गिरने की वजह से। एक मकान को, कच्चा मकान था, मामूली सी उसमें दरारें पड़ी और एक शख्स मामूली जख्मी हुआ। आज उसके बाद जो सूरत हाल बनी है उससे मुतल्लिक भी हम आपको अपडेटेड रखते हुए हैं। DG ISPR जिन्होंने अब से कुछ देर पहले मीडिया को ब्रीफ किया आज होने वाली कार्रवाई से मुतल्लिक, उन्होंने कहा आज जो कार्रवाई की गई है गो के पाकिस्तान कुव्वत रखता है, सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने दिफा में कार्रवाई की है। ये जवाबी कार्रवाई नहीं थी, पाकिस्तान ने दिफाई कार्रवाई की है। और साथ ही साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। बार बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के अमन को दाव पर लगाकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जंग में किसी की जीत या हार नहीं, इंसानियत की हार होती है। साथ ही साथ आलमी बरादरी से भी उन्होंने अपील की कि जो कशीदा हालात हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनका नोटिस ले और आलमी बरादरी इसमें अपना किरदार अदा करे। DG ISPR ने कहा कि सलाहियत कुव्वत होने के बावजूद हम फिर भी चाहते हैं कि मसाइल का हल बातचीत से निकले। जंग मसाइल का हल नहीं है, पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पाक फौज के पास भारत को जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। आज पाक फजाइया ने कंट्रोल लाइन के पार 6 अहदाफ को एंगेज किया। फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, 2 भारतीय पायलट्स को गिरफ्तार भी किया गया, 1 जख्मी पायलट को CMH मुंतकिल किया गया और यह भी बताया गया उनकी जानिब से कि दूसरा पायलट उन्हीं के पास है। भारत का पाकिस्तानी F-16 गिराने का दावा झूठा है, कार्रवाई में F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया गया। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग देते हुए यह भी बताया कि जंग दुनिया के किसी भी मसले का हल नहीं है। आज की कार्रवाई मुल्क की दिफा के लिए थी। भारतीय फौजी तंसीबात के करीब खुले इलाके में हमला करके अपनी सलाहियत का पैगाम दिया। 6 अहदाफ को निशाना बनाते हुए इंसानी जानों को बचाया गया।
और मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं था। जवाबी कार्रवाई में फैसला किया कि फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे। एक भारतीय जख्मी फौजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। भारत का पाकिस्तानी F-16 गिराने का दावा झूठा है। पाकिस्तान ने कार्रवाई में F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि जख्मी भारतीय फौजी के साथ मुहज़्ज़ब कौम की तरह सलूक किया जाएगा। जख्मी भारतीय फौजी का CMH में इलाज जारी है। जबकि यह भी कहा गया DGISPR की जानिब से कि आलमी बिरादरी को पाकिस्तान भारत कशीदगी का नोटिस लेना चाहिए। जंग में किसी की जीत हार नहीं, इंसानियत की हार होती है। हम अभी अपने एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे। हमारे एक एक्सटेंसिव पैनल हमारे साथ मौजूद था, जिसमें न सिर्फ सियासतदान थे बल्कि दिफाई तज्जियाकार भी थे, हमारे इन हाउस एनालिस्ट भी थे, और सभी ने एक बात पे इत्तफाक किया कि जंग मसाइल का हल नहीं है, और साथ ही साथ कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, सिफारती सतह पर भी ये बात बावर करवाने की ज़रूरत है कि भारत जो रवश इख्तियार किए हुए है, भारत की तरफ से पाकिस्तान की हुदूद में दरअंदाजी, भारत की तरफ से जो जारहियत का मुजाहिरा किया जा रहा है, वो मसाइल का हल नहीं है, वो सही नहीं है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर उन्होंने जोर दिया है। आलमी बिरादरी को पाकिस्तान भारत कशीदगी का नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंग में किसी की जीत हार नहीं, इंसानियत की हार होती है। पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आलमी बिरादरी आगे बढ़े और दोनों ममालिक के दरमियान अमन के लिए कोशिशें करे। जंग में किसी की जीत हार नहीं, इंसानियत की हार होती है। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी पर खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया है। और DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। जंग में किसी की जीत हार नहीं, इंसानियत की हार होती है। साथ ही साथ एक अहम इजलास से मुतालिक भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का अहम इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। ये इजलास इस वक्त जारी है। इसके बाद मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद में लेंगे, कौम से खिताब करेंगे। इस इजलास की बात की जाए तो कमांड अथॉरिटी के मेंबर वज़रा, DGISI, DGSPT भी शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब करेंगे। नहायत ही अहम फोरम, नहायत ही इम्पॉर्टेंट फोरम, जिससे मुतल्लिक कल DGISPR ने भी अपनी प्रेस ब्रीफ में इसको मेंशन किया। और कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलब किया था इजलास, जिसको अब चेयर कर रहे हैं, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, जो कि अभी इन सेशन है। इसमें जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मौजूद हैं, सर्विसेज चीफ मौजूद हैं, दीगर आला हुक्काम शरीक हैं, और इस वक्त तबादला ख्याल किया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले इत्तलात के मुताबिक अब से कुछ देर बाद इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को इत्तमाद में लेंगे और खिताब भी करेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि DGISPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को ब्रीफ किया आज होने वाली कार्रवाई से मुतल्लिक। उन्होंने बताया कि किस तरह से 6 टारगेट्स को इंगेज किया गया, लेकिन इसमें मकसद ये था कि बताया जाए कि पाकिस्तान सलाहियत रखता है, कुव्वत रखता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता कि खित्ते का अमन ख़राब हो। पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, और किसी भी तरह नहीं चाहते कि खित्ते के अमन को दाव पर लगाकर कोई कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान अपनी सरहदों के दिफा का हक रखता है और दिफाई कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के नतीजे में DGISPR ने यह भी बताया कि 2 भारतीय पायलट्स को ग्राउंड फोर्सेस ने अपनी हिरासत में लिया। एक पायलट जख्मी था जिसको CMH मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए, और दूसरे को जिसको हिरासत में लिया गया उसका हमने आपको इतराफ़ी बयान भी अब से कुछ देर पहले सुनवाया। विंग कमांडर अभिनंदन है जिनको हिरासत में लिया गया है, और दूसरे जो पायलट हैं जो ज़ेर हिरासत है वो इलाज के लिए अस्पताल में मुंतकिल हैं। साथ ही साथ भारतीय मीडिया जो दावे कर रहा है उसकी भी तरदीद की DGISPR ने और कहा कि इस ऑपरेशन में F-16, F-16 तैयारे इस्तेमाल ही नहीं हुए। और जो भारतीय दावे कर रहा है, भारतीय मीडिया जिस तरह से दावा कर रहा है कि कोई F-16 तैयारा उनकी हुदूद में गिरा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हमें बता रहे हैं कि इस वक्त आलमी बरादरी को नोटिस लेने की बहुत ज़रूरत है और उनका किरदार इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और ताज़ा और अहम बयान भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का ये बयान सामने आया है। भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा, ये कहा है
सुषमा स्वराज ने, और ये भी कहा कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। भारत की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है, रिएक्शन सामने आया है। बयान की सूरत में भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। अहम डेवलपमेंट हुई है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का बयान। वो कहती है कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता, भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज कहती हैं कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता, भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। DGISPR जिन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान अमन का पैगाम देता है, अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बयान सामने आया है। वो कहती हैं कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता, भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का ताज़ा बयान आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। सुषमा स्वराज का यह भी कहना है कि भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। आज पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत की जानिब से ये पहला बयान आया है सामने, रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता, भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा। आपको ये बताएं कि चीन में इस वक्त मौजूद हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज, चीन के दौरे पर हैं और वहाँ से उन्होंने बयान जारी किया है। कहा है कि भारत जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेता रहेगा, भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। आपको बताते चलें कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज जो इस वक्त चीन के दौरे पर मौजूद हैं, चीन से उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तमाम तर सूरत हाल से हम आपको अपडेटेड रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ भारतीय तैयारों ने दरअंदाजी की, उसके जवाब में आज जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपको आगाह किया। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताते चलें तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और दीगर आला हुक्काम शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती पर गौर हो रहा है, जौहरी सलाहियत से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर हैं। और अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे, मुल्क की मजमूई सूरत हाल जो है उससे आगाह करेंगे, कौम को एतमाद में लिया जाएगा वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। अभी जो इजलास जारी है उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नेशनल कमांड अथॉरिटी का यह अहम इजलास जारी है वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत। इस इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर हुक्काम भी शरीक हैं। इजलास में मुल्की सलामती और जौहरी सलाहियत से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर हैं। कमांड अथॉरिटी के मेंबर वज़रा भी इसमें मौजूद हैं और इसी दौरान हमें डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। राना जवाद साहब, एक तरफ नेशनल कमांड अथॉरिटी का यह अहम इजलास जारी है, दूसरी जानिब भारत की जानिब से पहला बयान की सूरत में रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहा है सुषमा स्वराज ने कि भारत मौजूदा सूरत हाल में मजीद कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल के बाद दिफा का हक इस्तेमाल किया और अब आपको लग रहा है कि भारत बैकफुट पर आ गया। मेरा ख्याल है कि ये गलती का एहसास होना या इस चीज को किसी गलत फहमी का दूर होना एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान ने ये बात तो दिखा दी है कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी भी है, पाकिस्तान की जो रिजॉल्व भी है और पाकिस्तान के पास मीन्स भी है कि वो मैचिंग रिस्पांस दे सकता है। अगर कोई एग्रेशन इंडिया की तरफ से आएगी तो पाकिस्तान भी उसको जवाब देगा। और अभी जब ये वीडियोस भी सामने आएंगी जो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने आज टारगेट्स को स्ट्राइक किया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, उसमें भी बड़ा वाज़ेह है और बड़ा केयरफुली उसको इस तरह दिखाया गया है कि जब पाकिस्तान का जो एयरक्राफ्ट है वो अंदर गया है और टारगेट को वो लॉक करता है, लेकिन टारगेट को वो निशाना नहीं बनाता बल्कि अपना मिसाइल जो है वो राइट साइड पे हिट करता है। तो पाकिस्तान का मैसेज बड़ा क्लियर है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास विल है, लेकिन हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाह रहे, डी एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। हम आपको मैचिंग रिस्पांस इसलिए दिया है कि आपकी गलतफहमी दूर हो जाए। और अभी जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग है, अब नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम है नेशनल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो अभी तक की इतलात है वो यही है, जैसे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़ेह तौर पर ये मैसेज था कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा वो मोस्ट लाइकली यही होगा कि पाकिस्तान जो है वो वॉर नहीं चाहता, पाकिस्तान एस्केलेशन नहीं चाहता, पाकिस्तान डी एस्केलेट करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी और एबिलिटी और रिजॉल्व टू स्ट्राइक बैक एट इंडिया, अगर इंडिया कुछ करेगा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये खुशाइन बात है कि हिंदुस्तान के अंदर भी जंगी जुनून जो है
वो कम हो। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि हुकूमती सतह पे भी इस बात का वाजिया अंदिया दिया गया और कोशिश भी की गई है कि किसी किस्म का पाकिस्तान के अंदर जंगी जुनून जो है वो नहीं होना चाहिए। और तो हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर भी अब ये लाजिम है कि इस चीज़ को वो रेसिप्रोकेट करे, क्योंकि ये गलत फहमी तो उनकी यकीनन दूर हो गई है कि वो यूनिलैटरली पाकिस्तान पे स्ट्राइक करके तो पाकिस्तान को नीचा दिखा सकते हैं। पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी, मैचिंग रिस्पांस भी किया, और उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई पाकिस्तान एयरफोर्स की और इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स का नुकसान हुआ, उनके 2 जहाज तबाह हुए, उनके 2 पायलट पाकिस्तान के कस्टडी में है। तो ये बिल्कुल क्लियर एक बात नजर आ रही है कि अगर इंडिया डीएस्केलेट नहीं करता और जंग की तरफ भी जाता है तो इवेंचुअली आपको टेबल टॉक पे आना पड़ेगा, आपको निगोशिएशन पे, मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा। जंग किसी मसले का हल नहीं। डीजी ISPR ने भी अपनी ब्रीफिंग में ये बात बड़े वाज़ेह तौर पे कही है, और नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग में जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का मूड है वो यही है कि वॉर पाकिस्तान नहीं चाहता, वॉर खित्ते के इंटरेस्ट में नहीं है, वॉर दुनिया की पीस के इंटरेस्ट में नहीं है, वॉर ह्यूमैनिटी के इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन चूंकि एक एग्रेशन थी, उस एग्रेशन का जवाब दिया, और बाकी दोनों मुल्कों में मसाइल हैं, बिल्कुल हैं, उनको बातचीत की मेज पे हल करना चाहिए। तो अगर तो हिंदुस्तान की तरफ से भी इसी तरह का मैचिंग रिस्पांस आता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो कौम से खिताब है थोड़ी देर में, आज किसी वक्त वो कर रहे हैं, वो बड़ा क्रिटिकल होगा, और उसमें ये मैसेज बिल्कुल लग रहा है कि वाज़िया होगा कि पाकिस्तान जंग के लिए कोशिश नहीं करेगा, पाकिस्तान डीएस्केलेट करेगा, पाकिस्तान अमन की फिर ऑफर करेगा, पाकिस्तान इस चीज़ का भी इरादा करेगा कि जो दोनों मुल्कों के मसाइल हैं, और बिल्कुल है, कोई इसे इनकार नहीं कर सकता कि नहीं है, दोनों मुल्कों के मसाइल हैं, उनको बैठ के बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तो ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन जाहिर है ये वन साइडेड नहीं हो सकती। हिंदुस्तान को भी इसका मैचिंग रिस्पांस जो है वो देना पड़ेगा। क्लियरली पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी लीडरशिप है, वो इस वक्त इस बात को प्रोपेगेट भी कर रही है और इस बात को एडवोकेट भी कर रही है कि डी एस्केलेशन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन। राना साहब, गो के वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज का बयान बहुत वेटेज रखता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि अगर भारत ऐसी ख्वाहिश रखता है कि वो मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता, चीज़ों को एस्केलेट नहीं करना चाहता, तो क्या उनको एक बाकायदा तौर पर इसको मुख्तलिफ फोरम्स पे आगे लेके चलना चाहिए और वाज़ेह तौर पर इसको आगे चलना चाहिए? जैसे हमारे DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा सवालात के जवाब दिए, तो इस तरह से उनकी भी फॉरेन पॉलिसी को बड़ा साफ शफाफ और एक साफ पैगाम आना चाहिए। देखिए, ये तो उनकी चॉइस है कि वो अपने रिस्पांस को किस तरह डिसमिनेट करते हैं या क्या उनका होता है। कल उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत के बाद जो पहला और अकलौता रिस्पांस इंडिया की तरफ से सरकारी आया था, उसमें उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं लिए और एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई, और उसके 3 हिस्से थे उनके जवाब के, कि उन्होंने नॉन मिलिट्री स्ट्राइक किए हैं, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। लेकिन जाहिर है ये बात तो कोई भी नहीं तस्लीम करेगा, और हिंदुस्तान की ये बात, 2 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं हिंदुस्तान के लिए रियलाइज करने के लिए। उनका ये दावा कि उन्होंने टेरर कैंप्स को स्ट्राइक किया गलत है। पाकिस्तान के बेहतरीन सहाफ़ी इस वक्त उस इलाके में मौजूद है और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद है। आप उनकी रिपोर्टिंग देख लें, वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, वहाँ के लोगों के बयान सुन लें कि बिल्कुल एक ऑप्टिक्स और एक शो बाज किस्म की कोई इन्होंने स्ट्राइक करने की कोशिश की है। ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ, तमाम दावे हिंदुस्तान के गलत हैं। ना वहाँ टेरर कैंप था, ना वहाँ तो कोई हलाकतें हुई है, कुछ भी नहीं हुआ, और ये जानबूझ के प्रोवोकेशन इंडिया की तरफ से आई थी, बेसलेस, और ये गलती आई। उसके बाद आज जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की अपने दिफाई तौर पे, उसके बाद हिंदुस्तान ने जब एंगेज किया तो आपने देखा कि उनके 2 तैयारे जो थे वो मार गिराए गए, उनके 2 पायलट्स जो हैं वो पाकिस्तान की हिरासत में है। तो ये एक मौका है कि इस पे नेगोशिएशन शुरू की जा सकती है। हॉस्टिलिटीज अगर इंडिया की तरफ से बंद नहीं होंगी तो मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि वो खतरनाक सूरत हाल है, कशीदा है, जंग
کی طرف جا رہے ہیں فی الحال دونوں ملک. تو اگر ہندوستان نے اس کو ریئلائز نہ کیا اپنے یہ غلطیوں اور جھوٹ کے باوجود, تو ظاہر ہے اس کو تو پھر پاکستان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو نچ کیا ہے. ISPR میجر جنرل آصف غفور نے اپنی پریس کانفرنس میں بہت ہی اوپنلی اس بات کو کہا ہے, اپیل کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ اپنا رول پلے کریں, کیونکہ اگر ہندوستان کا جنگی جنون جو ہے ان تمام غلطیوں کے باوجود, ان سیٹ بیک کے باوجود نہیں رکتا تو پھر اس کے نتائج جو ہے تباہ کن ہوں گے اور وہ کسی کے حق میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بار پھر اس اہم اجلاس کی بات کر لیتے ہیں رانا جواد صاحب. جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا یہ اہم اجلاس جاری ہے, پاکستان کے پاس کون کون سے آپشنز اب موجود ہیں, کن کن آپشنز پر غور کیا جا سکتا ہے, اور آپ کے خیال میں وزیر اعظم عمران خان جو کچھ دیر بعد خطاب کریں گے کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے یہ پاکستان کا ہائیسٹ فورم ہے. تمام نیشنل اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ اس میں ہوتی ہے. پاکستان نے جنگ میں جانا ہے, یہ فیصلہ بھی آج NCA میں ہوگا. پاکستان نے جنگ میں نہیں جانا, یہ فیصلہ بھی ہوگا. پاکستان نے جنگ کی صورت میں کون سے ہتھیار استعمال کرنے ہیں, یہ فیصلہ بھی آج ہوگا. پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ کس سطح پہ تعلقات کی ریزمپشن یا جو ہندوستان کی طرف سے ہاسٹیلٹیز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کس لیول پہ جا کے ایسکلیشن کا جواب دینا ہے, اس کا فیصلہ بھی آج ہوگا. لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ابھی تک ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت اس بات پہ کنونسڈ ہے کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. وہ اس چیز پہ کنونسڈ ہیں کہ ہندوستان کو یہ ریئلائز کروانا ضروری ہے, ان کو یہ میسج دینا ضروری ہے کہ جو آپس کے مسائل ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے. پاکستان اس معاملے میں کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. اگر ہندوستان کے پاس کوئی شکایت ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ کوآپریٹ کرے. پاکستان نے اس سے پہلے بھی ہندوستان کے ساتھ کوآپریٹ کیا, دونوں ملکوں کے درمیان کوآپریشن ہوا ہے. لیکن اگر ہندوستان جو ہے وہ جارحیت کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے بھی کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ پاکستان جارحیت کا جواب جارحیت سے دے اور پھر ایک ایسی جنگ شروع ہو جس کا ظاہر ہے تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس میں بے پناہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ وکٹم ہوں گے, اور الٹیمیٹلی اگر جنگ ساری عمر تو جاری نہیں رہے گی, اس کی بھی مذاکرات کی صورت میں جو بھی ہونا ہے, تو بنیادی طور پہ NCA کی میٹنگ میں اوور ویلمنگلی پاکستان کا یہی موڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ہندوستان کو یہ پیغام دیں گے کہ امن کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے اور ڈی ایسکلیٹ کرے. ایسکلیشن سے جو ہے وہ صورتحال خراب ہوگی. السلام علیکم, میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں. دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز.